Okay. Thank you. Can I start? Can I start the Yes, class? sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yesterday, those homework I gave you, all of you have completed. And if any problem, you ask me. अगर कोई दिक्कत है कल जो होमवर्क दिए थे, अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकता है. Anybody, have you any problem? So you ask me. Hello. Yes, sir. कोई दिक्कत है बेटे? Exercise. Which exercise going on? सर स्कूल कब खुलेगा? ओ मेरे बच्चे, स्कूल खुलेगा, खुल गया है स्कूल. ये बोलिए कि हमारी क्लास कब, हम लोगों की रीओपन कब होगा? स्कूल तो यस सर, वही बताइए. ऐसा है कि अभी गवर्नमेंट का ऑर्डर 9 to 12 का है, और जैसे ही मेरे को लग रहा है आफ्टर 15th of November या सेकेंड वीक ऑफ द नवंबर द जूनियर क्लासेस इज आल्सो ओपन. मेरा जहां तक अनुमान है, बट इट इज डिपेंड ऑन गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन. गवर्नमेंट के ही इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड है. इसमें स्कूल कुछ भी नहीं कर सकता. स्कूल को जैसा गाइडलाइंस मिलेगी स्कूल करेगा. ओके. हेलो. Yes, sir. Okay, now can I start? Yesterday I gave the exercise 11.2 completed. And any problem? Now, no problem? No. बोलो बेटे, कोई प्रॉब्लम है? आप लोगों ने किया है कि नहीं होमवर्क? हेलो. यस सर. आप लोगों ने होमवर्क कर लिया है पूरा? यस सर. कोई दिक्कत? 11 वाला तो आपको एक ही तो क्वेश्चन दिया था कि कर लेना. क्वेश्चन नंबर 11, द एडजेसेंट द डायग्राम आज गिवन. एक आपको डायग्राम दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 11. क्लास 8. Now, this is the question number 11. The figure is given. जब कौन बोल रहा है? हैं? This type figure. The side of the rectangular, the diagram of the adjacent picture frame. This is the picture frame. Has outer dimension. That means the outer length and breadth is given 24 centimeter into 28 centimeter. That means the length is 24 centimeter and breadth is 28 centimeter. And the inner dimension is 16 centimeter. This is 16 centimeter and that is 20 centimeter. 20 centimeter. Okay. Now, find the area of each section. Find the area of each section. Find the area of each section of the frame, and the width of each section is same. That means you have find the area of each section. आपको हर एक section का area निकालना है. तो first आप this and these are the parallel lines. Here these and this line are parallel lines. If you find the height, then very easily you find the area of this trapezoid. And this area and this area of trapezoid are equal. तो हम दोनों का लिख देंगे same. And similarly, this area and this area of the trapezoid are same. But we find the height. So now I give the name of the this rectangular figure A, B, C, D.
and this is my E, F, G, H. Okay. Now this length is 24 centimeter and this length is 16 centimeter. Very easily find the height of this trapezium. 24 minus 16 and it comes this height. ये height आ जाएगी बहुत easily से. तो height of the trapezium, my solution is this height of trapezium is equal to ट्रेपेज नेम लिख देते हैं हम, ट्रेपेज FBCG. FBCG equal, if you subtract 24 minus 16 centimeter and it comes 8 centimeter, and this is the height. We write here height, and this height both are same. No, he same. Oh, sorry. Oh, so sad. Not 8 centimeter. Yeah, यहाँ ध्यान रखिए. This is 16, and this part is here and here is 24 centimeter. अगर हमने इसको perpendicular डाला, यहाँ देखिएगा एक चीज थोड़ा सा गलती हो गई बेटे, थोड़ा सा मैंने ये गलत हो गया है, सभी लोग ये मिटा लीजिएगा थोड़ा सा. Now we draw a perpendicular. So this length is 20 centimeter. Yes, 20 centimeter होगी यहाँ से यहाँ तक, और this height is 24 and this length is 28 centimeter. तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों का डिस्टेंस आएगा, इसका और इसका डिस्टेंस आएगा. अब टू पैरेलल लाइन से अगर इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर तो बोथ द साइड आर इक्वल. अगर हम इसे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करेंगे तो आप देखेंगे कि बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. दैट मीन्स फर्स्ट वी फाइंड दिस एंड दिस लेंथ. इन दोनों लेंथ को निकाल देंगे, सॉरी, दोनों लेंथ को अगर हम निकाल देंगे, दोनों लेंथ को अगर हम निकाल देंगे तो ये बचेगा कितना? 4. कैसे? देखिए 28 माइनस 20 और मैं डिवाइड कर देता हूं 2 से, क्योंकि बोथ आर सेम हाइट. कर दूं ऐसा, लिख दूं डायरेक्ट? यस सर. समझ जाओगे ना? समझ जाओगे ना? और नहीं तो फिर बोथ द ट्राइंगल आर सेम, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, तो इट कम्स 8/2 सेंटीमीटर. 2 4 8, देन हाइट कम्स 4 सेंटीमीटर. अब ये कौन सी हाइट आएगी? 4 सेंटीमीटर. अब ये 4 सेंटीमीटर ये है, दिस इज 4 and this is 4, then this is similar to, that means this height is 4 centimeter of this trapezium. इस trapezium की आएगी ABFE की आएगी हाइट, इसकी आएगी ABFE. तो हम यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं, ये गलत है, और मैं लिखता हूँ ट्रेपेज ABFE. This is the height of this trapezium. और इसको आप H1 भी मान सकते हो, H1 H2 करके हम लिख ले तो आसान हो जाएगी. ओके? यस सर, मैं वैसे ही लिखा हूँ. ऐसे ही लिखे हो ना? एंड सिमिलर, यस सर. ये भी हाइट सेम ही होगी, बिकॉज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. ये दोनों फिगर सेम है, तो हम एक का एरिया निकाल देंगे तो सेकंड का एरिया भी सिमिलर होगा, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. चलते हैं. अब सबसे पहले मैं इसका एरिया निकाल दूं. एरिया निकाल दूं? यस. एरिया ऑफ यस सर. एरिया ऑफ
of trapezoid ABFE. What is the area? ABFE. 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 And what is the formula? जल्दी बताओ ट्रेपेज का. Sir, 1/2 A plus B into height. 1/2 sum of the parallel side. 1/2 sum of the parallel side into height. My parallel side is, this is my A, this is my B. So now we write here 1/2 A. What is A? 24. 4. B. What is B? 16. 16. Or this centimeter. And what is the height? What is the height? 4. Very good. 4. And this centimeter, take common, and this centimeter multiply to each other, and it comes centimeter square. यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. Now, कोई problem? Hello? Now, No, sir. we simplify. It is multiple form. Then we simplify to 2 to 4, and we add both the numbers. It comes 24 plus 6, 30 plus 10, 40. It comes 40 into 2 and centimeter square. And it comes 80 centimeter square. Or in this question, the question asks, find the area of each section of the frame. Find the area. Middle में तो picture रहेगी. Diagram is the adjacent picture frame. Outer dimension is and the inner dimension. Find the area of each section of the frame. हर एक section का area निकालना है. तो इसमें तो बहुत सारे area हो. 1, 2, 3, 4 और ये बीच वाला 5 sections हैं इसमें. तो हमने इस वाले section को निकाल दिया. And this area, अब मैं लिख रहा हूं, area of ABFE and area of HGCD equal area of ABFE. इसको समझ जाइएगा, ये ट्रेपेज में and it comes 80 centimeter square and both are same of HGCD. Okay, and this is my first answer. तो इसमें हमने 2 areas निकाल दिए, एक इसका और एक इसका फ्रेम का. ये तो एज इट इज हो गया. चलते हैं अब सेकंड पे. अब सिमिलरली इसकी हाइट निकालें. तो हमने तो अभी इसको लिया था, अब इसको लें. तो चलिए 24 हाइट ऑफ ट्रेपेज किसका निकालें? BCGF इक्वल चलिए भाई 24 minus 16, similar process, and divided by 2 because both the triangle are similar, both the triangle are congruent. Then this side and this side be equal. ये congruency से equal हो जाता है. यहाँ हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा. And now we subtract करिए 8/2 centimeter and it is also comes as 4. ये भी 4 ही आ रहा है. 2 4s are 8. So it comes 4 centimeter. That means the H2 height, this is my H2 and this is my H1. Okay, ये हमारी H2 आ गई. अब एरिया निकाल लें.
एरिया ऑफ, इसको मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, 4, it is comes also 4. Now, area of BCGF, BCGF, and that is the trapezoid, and we use the formula 1 by 2 sum of the parallel side into height, and this is my height h2. Okay, now put these values. A, what is the A? A मेरा कितना है? 20. ओहो, मैंने 28 ये वाला ले रहे हैं. 28 plus what is my B? 20 into height. What is my height? What is the height? जल्दी बताइए. 4. Very good. Sir, 4. And both the centimeter multiply to each other, it comes centimeter square. And now 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, and 48 into 2 centimeter square आ रहा है ना, and 48 to ja 90, 48 to ja 90 centimeters square, and this area is equal and similar. This is the area. Therefore, ये तो हमारा ये हो गया एरिया ऑफ. लिख दें, यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, यहाँ दिखेगा, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना. एरिया ऑफ, मैं इसी का अगर कर दूं, चलिए. यस सर, एरिया ऑफ, कहाँ कर दूं, यहाँ लाइन खींच दे रहा हूँ. एरिया ऑफ this AEHD equal 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो ये आ रहा है सही. ये नहीं आ रहा है. Yes, sir. अब चलिए लार्ज, Yes, एक sir. सेक्शन बीच का पड़ा है, बीच वाला सेक्शन. इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप, तो इजीली यू फाइंड. इसको कहाँ कर दूं, कहीं जगह दिख रही है? कैन आई इरेज? यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ यहाँ. ये बहुत आसान है. एरिया ऑफ EFGH and it is rectangle, then area of rectangle is length into L into B. length into breadth. breadth. So we write here length into breadth, and my length is 16 centimeter and my breadth is 20 centimeter. And this, both the centimeter multiplied to each other comes centimeter square, and 16 to the 32, 0 centimeter square. And this is my fifth section. Answer. Now check the answer. Please check the answer. Hello. Please. बेटा चेक करिए. सर फिफ्थ सेक्शन का नहीं दिया है सर, नहीं निकालना है उसका. अच्छा कोई बात नहीं, हमने निकाल दिया. पिक्चर, दिस इज द एरिया ऑफ द पिक्चर. ये दिस इज द एरिया ऑफ द पिक्चर, ये पिक्चर का एरिया है. तो अगर हम निकाल भी देते हैं तो कोई गलत नहीं कर सकता है. हाँ, ओके ओके, थैंक यू. इन द डायग्राम फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम. इफ द ईच सेक्शन, इसने बोल दिया इसलिए हमने फ्रेम पिक्चर्स के भी सेक्शन का निकाल दिया है. कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाल देने पर भी कोई काट नहीं सकता है. एंड दैट इज आवर आंसर. राइट डाउन. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बेटे? नो सर, नो सर. चलते हैं. तो अब आज नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, सॉलिड शेप्स. कैन आई इरेज? इसको इरेज कर दूं? अच्छा क्वेश्चन है.
Not now. Big question for the examination point of view. बड़े नंबर वाले एग्जाम में 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है. इसको okay. Now solid shapes. In the previous exercise, we only find the area, and the area always, look at there, मेरी तरफ देखिए. Please open your videos. Please open your videos. बेटे अपने वीडियो को ओपन करो, ओपन करो. अब the previous exercise, we have finding the areas, and area always be two-dimensional. But the next topic is solid shapes. And the solid, this is the solid. Look at the duster. This is the solid. Area, we cannot lift up. Area जिस चीज का भी find it. Area always we find on a flat surface. That means इस बोर्ड को हम जो एरिया हमें निकालना है, this is the flat surface. और फ्लैट सरफेस को आप लिफ्ट नहीं कर सकते हैं. जैसे ही लिफ्ट कर दिया, it converted into the solid shapes. And solid shapes always be three-dimensional. Solid हमेशा three-dimensional होता है. जैसे आपके सामने मैंने ये duster, look at here. This is duster, and this duster is a solid, and we lift up. इसको हमने उठा दिया. And here is three-dimensional. Look at here. This is the length, this is the breadth, and that is the height. तो थ्री डायमेंशन इसके बन गए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. दैट मीन्स सॉलिड ऑलवेज बी थ्री डायमेंशनल शेप्स. याद रखिएगा, सॉलिड हमेशा थ्री डायमेंशनल शेप्स होते हैं. तो वी फाइंड द एरिया ऑफ द सॉलिड्स. सरफेस एरिया निकाल सकते हैं. देखिए ये सरफेस है, सरफेस एरिया. कितने इसके सरफेस है कोई बता सकता है काउंट करके? 1 2 3 4 5 6 सरफेस है. देखिए मैंने इसको यूं खड़ा कर दिया है. देखिए सरफेस यूं कर दिया तो भी खड़ा हो जाएगा. कहीं भी 6 सरफेस है. और इस सारे सरफेस को अगर, और सरफेस का हम एरिया निकालते हैं, और सारे सरफेस को हम ऐड कर दें तो बनता है टोटल सरफेस एरिया. ओके, तो नाउ first we, yes, anybody ask me? No, sir. Okay, so first we start this topic, we write some formulas. इस टॉपिक को करने से पहले इसके फॉर्मूलेज के बारे में हम लिख सकते हैं. अब जब आप सॉलिड में पढ़ेंगे तो कुछ शेप्स आएंगे. ये शेप कोई बता सकता है कौन सी शेप का है? क्लास 7th में पढ़े होंगे. व्हाट इज द शेप ऑफ दिस डस्टर? Cuboid. Rectangle. Very good. Very good. Cuboid. Right. Because it is a solid, therefore it is a cuboid. And cube तो सभी ने देखा होगा. सब लोग खेलते होंगे. क्या बोलते हैं? खेला जाता है लूडो. Yes. Dice. लूडो आप लोगों ने खेला होगा. Dice. Very good. Dice is a cube shape, and cube whose all the sides are equal. Those solids in the shape of कैसा? रेक्टेंगुलर शेप में हो. रेक्टेंगुलर, इधर देखिए. अब इसको हम बनाते हैं. लेट सपोज ये रेक्टेंगल के शेप में है. अच्छा, 3D फिगर. हाँ, 3D बना रहे हैं. तो ये देखिए हमने इसको इससे ज्वाइन किया. ये दिस वर्टेक्स जॉइन टू ईच अदर एंड इट इज अ क्यूबॉइड. Yes, sir. ये क्यूबॉइड, एंड दिस क्यूबॉइड, and this is the length, and this is the breadth, and that is the height of this cuboid. ये सभी लोग आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. In cube, Yes, sir. all the sides are equal.
दैट मीन्स इट जस्ट लाइक अ स्क्वायर शेप, आपका स्क्वायर शेप में हो जाएगा। ये देखिए, और हमने ये आपके सामने यह देखिए बनाया, लग रहा है बेटे? इट इज क्यूब, ये क्यूब बन गया एंड दैट इज क्यूब। और थर्ड, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों की मम्मी, आप लोग शैतानी पढ़ते नहीं होंगे तो किससे पिटाई करती हैं? सर बेलन से। बेलन से। से दैट इज कॉल्ड अ सिलेंडर, दैट इज कॉल्ड अ सिलेंडर। सिलेंडर। सिलेंडर, इसी को हम बोलते हैं सिलेंडर। ये देखिए सिलेंडर, एंड दिस इन द सिलेंडर द बेस आर इन द सर्कुलर शेप। जो बेस है वो सर्कुलर शेप में होगा, जस्ट लाइक हियर, जस्ट लाइक इट। एंड दिस इज, देखो बेटे, नाउ लुक एट हियर, लुक एट हियर, दैट इज, देखिए ये बेलन हमने आपके सामने बना दिया है। और पापा लोग तो बेलन से नहीं मारते हैं, लेकिन टीचर जो है वो बेलन से मारता है, जानते हो ना? है नो सर, टीचर, हाँ स्टिक, स्टिक देखे हो, बिल्कुल लाइक अ सर्कुलर शेप। स्टिक्स बिल्कुल Yes, sir. सर्कुलर होती है, वो सिलेंडर के रूप में होती है। और ये देखिए आपके सामने हमने एक सिलेंडर बना दिया, बन गया सिलेंडर, देख रहे हो सिलेंडर? एंड दिस यस सर। द बेस एरिया इज लाइक अ सर्कल। देखिए बेस बिल्कुल, देखो सर्कल दिख रहा है, देख Yes, रहे हैं ना? Yes, sir. लाइक अ सर्कल, दैट इज द बॉटम। इसको मैंने खड़ा कर दिया, ये बॉटम हो गया। एंड टॉप ऑल्सो ए सर्कल, हो गया सर्कल, हुआ ना? यस सर। देखिए यस सर। दिस इज द सर्किल। तो सर्किल का एरिया तो आप जानते ही हो, पाई आर स्क्वायर होता है, और दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये अपनी हाइट होगी, हाइट होगी ना? यस सर। तो हो गया ना? चलिए, अब इसके पहले हम फॉर्मूले लिखेंगे। अभी एक चीज और मैं कर रहा हूं, इस सिलेंडर को देखिए, इधर सिलेंडर, इस सिलेंडर को मैंने एक कटर लिया और उससे कट कर दिया। देखिए मैंने कट कर दिया, यहां से मैंने देखिए कट किया कटर से, और जैसे ही ओपन कर दिया तो ये कौन सा शेप आ गया? कोई बता सकता है? What is the shape? Rectangle. Rectangle. The circular cylinder, the lateral surface, ये इस surface को, इस surface, hey, don't talk, listen me, this surface is the lateral surface, इसे को बोलते हैं lateral, और total surface में ये circular surface भी add हो जाता है। Now this is the lateral surface, and lateral surface just like a rectangle whose breadth is pi r square and whose length is its height. अगर इसको हम लेंथ लेते हैं तो ये हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो ब्रेथ है वो पाई आर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, देन इजीली वी फाइंड क्या फाइंड? वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। ये पाई आर स्क्वायर तो सारी जगह रहेगा, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो खैर, अभी हम इससे पहले, अब फर्स्ट वी राइट द फॉर्मूलाज। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूला लिखते हैं। क्यूबाइट सिलेंडर, ए डोंट टॉक, आई एम टॉकिंग। First we write here. These are the three figures, and we have discussed about in three figures. इन्हीं three figures के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्लास 9th में जाते ही मेंसुरेशन का फर्स्ट पार्ट आपका इसी पर आएगा, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिएगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट क्लासेस। तो हम अब इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं।
एंड वी राइट द फॉर्मूला. व्हाइट बोर्ड तो ठीक है, ये तो फ्लैट सरफेस है ना, तो एरिया निकालते हैं नाउ. तो फर्स्ट वी स्टार्ट, हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस तो समझ गए ना, और लैटरल सरफेस. टोटल सरफेस और लैटरल सरफेस दो चीज होती है. लैटरल सरफेस का मतलब होता है चारों तरफ. दैट मीन्स एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम. टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाए तो वो लैटरल बनता है. तो हमारा रूम जो होता है, आप लोग जिस रूम में बैठे हैं वो किस शेप का है, कोई बता सकता है? सर रेक्टेंगल. अरे Rectangle. क्यूबॉइड. क्यूबॉइड शेप. Word है. क्यूबॉइड है. Yes, sir. लेंथ एंड Yes, ब्रेथ sir. आर डिफरेंट एंड हाइट इज Sir, आल्सो height भी है डिफरेंट. इसमें. हाइट भी डिफरेंट हो सकती है. दिस योर रूम इज जस्ट लाइक ए क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का शेप है. तो उसके 4 वॉल्स, लैटरल सरफेस, जो आपकी 4 दीवार दिख रही होंगी, छत को छोड़ दीजिए और नीचे सरफेस को छोड़ दीजिए, फ्लोर को छोड़ दीजिए, तो कितना हो गए वॉल्स? 4 वॉल्स. एंड दीज 4 वॉल्स आर कॉल्ड लैटरल सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड. उसको हम कई बार एग्जाम में 4 वॉल्स का भी एरिया निकालने को पूछा जाता है, और कई बार पूछा जाता है फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. तो दीज फर्स्ट वी राइट दीज फॉर्मूलाज. तो इन फॉर्मूले को लिखते हैं. तो जिससे फॉर्मूला, चलिए फॉर्मूला हम लिखते हैं. पहला, फर्स्ट क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो माय फर्स्ट फॉर्मूला इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सरफेस तो सभी जानते हैं. सरफेस एरिया ऑफ 2LV plus a ES plus H. cuboid. Write down 2 into L into L into B, length into breadth plus breadth into height and plus height into length. length. Okay, this is my first formula. Total surface area of cuboid is, ये पूरे चारों तरफ के 6 फेसेस होती हैं, जानते हो ना क्यूबॉइड के, 6 Yes. फेसेस, और सारे Yes, फेसेस sir. का हम सरफेस एरिया निकालेंगे. तो अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आएगा 2 into length plus 2 into length into breadth plus breadth into height plus height into length. Height. Into length. Now second, lateral surface or lateral surface or 4 walls area 2L plus B into H. area of a cuboid is equal to 2 into 2L length L plus plus B breadth into height. into height. And area always be in square. आप याद रखना, एरिया की यूनिट Yes, sir. ऑलवेज बी स्क्वायर. हमने पहले भी डिस्कस किया है, स्क्वायर यूनिट, एंड दिस इज आल्सो स्क्वायर यूनिट, याद रखिएगा. एंड वॉल इज ऑलवेज बी इन क्यूब. नाउ चलिए डायगोनल्स भी लिख लें. ये हो गया सेकंड. माय थर्ड diagonals of a cuboid. Diagonal of a cuboid. Void. तो आप लोग जानते ही हो डायगोनल, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स. दैट मीन्स हमने इसको किससे ज्वाइन कर दिया, इस वाले को हमने इससे ज्वाइन कर दिया. यह डायगोनल ही है. रूम में आप देखते हो ना, नीचे वाले कॉर्नर को उसके ठीक अपोजिट ऊपर वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे, वही डायगोनल बनता है. आप अपने रूम में देख सकते हैं. तो हम फाइंड कर सकते हैं डायगोनल्स ऑफ द क्यूबॉइड इज लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर
plus height square under root and it comes diagonal है तो यूनिट केवल आएगी यूनिट्स में ओनली यू फाइंड इन यूनिट यूनिट मतलब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर ये यूनिट है लिखा हुआ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर under root square root. That means if you find the diagonals of the cuboid, so you know the length of the cuboid, breadth of the cuboid and height of the cuboid also. And similarly मैं वॉल्यूम भी लिख दूं इसका वॉल्यूम का भी फॉर्मूला लिख दे Yes, बोलो sir. Yes. एंड Yes, sir. पार्ट मैं एरिया और वॉल्यूम दोनों साथ साथ लिखता चलता हूं volume of cuboid L into B. very good length into breadth into height और ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो हमने एक्सपोनेंट करे हैं तो यूनिट ऑलवेज कम्स cubic unit okay always be cubic volume the unit of cuboid is always in cubic unit याद रखिएगा ओके चलते हैं अब सेकंड Yes. तो ये Cylinder. कोई बात नहीं okay that is clear now can I erase Yes. all of you have write this formula how many formulas Yes. 1 2 3 2, 3, Yes, sir. 4. आपको याद रखना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 into length into Yes, breadth sir. plus breadth into height plus height into length lateral surface or 4 walls area of a cuboid यहाँ एरिया लिखना था कोई बात नहीं is equal to 2 into length plus breadth into height. Into height. Third, diagonal of the cuboid. If you find the diagonal of the cuboid, so equal length square plus breadth square plus height square under root. ये always comes unit. And volume of the cuboid is length into breadth into height. इससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं. वॉल्यूम तो आप जानते ही हो कि उसमें कितना चीज वॉल्यूम जानते हो ना वॉल्यूम का मीन्स उसमें कोई सामान उसमें कितना आ सकता है कोई भी चीज XYZ आप अपने रूम में वैसे बहुत सारी चीजें रखते हो सभी लोग जानते हैं नाउ माय Yes, sir. सेकंड फिगर इज हाँ यस Cylinder. माय सेकंड फिगर इज Cylinder. क्यूब के बारे में अब पढ़ें ये देखिए दिस इज माय क्यूब ऑल द साइड्स ऑफ द क्यूब आर ए इफ इट इज ए अगर ये है तो ये भी ए होगा एंड हाइट इज ऑल्सो ए दैट मीन्स ऑल द साइड्स length breadth and height are equal then they are called cube this is cube इसे क्यूब बोलते हैं each sides are equal now तो फिर इसी का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो देखिए यहाँ लेंथ भी देखिए लेंथ भी सेम हो जाएगी a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू ए कितना हो गया a स्क्वायर प्लस a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हुआ 3A. 3a स्क्वायर 3a square. तो मैं यहाँ मिटा रहा हूं और यहाँ लिख रहा हूं इधर देखिए 3a स्क्वायर और 3a स्क्वायर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 6a स्क्वायर दैट मीन्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 6a स्क्वायर where a is the side of Cuboid it या cube?